kind of meaning. Obtaining wood from making furniture, paper. Okay, Jannat, listen. We were studying forest. What? Jannat, बेटा वी आर स्टडिंग फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमें फॉरेस्ट का मतलब क्या है? एरिया विच इज कवर्ड विथ ट्रीज. Okay, forest is an area which is covered with trees. Okay, now we are going to study that most of the things, if there will be trees, that means it is a habitat for, it's going to be the habitat for all the animals. Most of the plants and animals, it is a habitat. So in the forest we have two categories, that is flora and fauna. Flora means plants and fauna means animals. Okay, in the forest we have plants, different type of plants and animals. And one more thing that is being taught over here is forests are called as green lungs. What are they called as? Green lungs. Why they are called as green lungs? Because in forest large amount of trees are, large number of trees are there, and trees are of green color. And the word next is lungs. Lungs, what is the function of lungs in our body? We have studied in 7th class that the lungs intake oxygen and release carbon dioxide and absorbs oxygen. The same thing happens with the trees. They are converting carbon dioxide into oxygen. They are taking the carbon dioxide from the air for photosynthesis and then they are releasing oxygen. So forests are called as green lungs. What are they called as? Green lungs. There are two type of they are called as green lungs. Next is Hanji. We have two type of things, that is flora and fauna. Flora and fauna means what? Flora means the plants, with different types of plants present over here, and fauna means animals present over here. So different large plants and animals are there. If there will be many plants, then it will be a home for animals also. If plants will not be there, animals cannot live, because animals need shelter as well as food. So the forest is providing shelter and food for the animals. So this is a home, or we can say habitat for the animals. So if we want to conserve forest, we are automatically conserving animals. And if we want to conserve animals, then it is necessary that we should conserve plants. That is forest. Next, on the next page, that is 94, the new word is there, that is called as deforestation. What is the new word? Deforestation. The D means cutting down and D means negative, and forestation means growing. So cutting down of trees on large number. Cutting down of trees on large number. What is deforestation, beta? Ajay? The cutting down of Cutting down of cutting down of trees on large number is called as deforestation. Why do you become relaxed, Anji? Now who is going to repeat this? Ritik is going to repeat. Ritik, on your mic and repeat the definition of deforestation. You can see from the board, beta, it's written. Amarjeet, Arjun, nobody is willing to give the answer. Gaurav, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा आंसर. हाँ जी,
गुड मॉर्निंग, आंसर दो। Yes, ma'am. Which question is यस अजय। अजय बोलो बेटा। Deforestation means cutting down of trees on large number. You all just go away wherever you want and you don't stay in the class and you are not answering at all. Another thing is that what are the causes of deforestation? Causes of deforestation. There are two type of causes of deforestation. One is man-made or another is natural. Man-made means why mans are cutting the trees. Mans are cutting the trees for making fields or for cultivating. For they need land for cultivating crops, so they are cutting the trees to obtain the land for cultivation. Secondly, they are cutting the trees for getting land for building houses, factories, and they are doing mining also. Mining means they are digging the earth to obtain coal. That is called as mining or other minerals. The next is obtaining wood for making wood. And we need some plant products also. For that is we want to make furniture, we want to make paper, we want to make fuel. That's why we are cutting most of the trees. समझ में आया? हम पेड़ों को काट रहे हैं क्योंकि हम उनसे फर्नीचर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं और फ्यूल बनाते हैं. और नेचुरल मेथड्स क्या हैं? नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अर्थक्वेक आ गया. अर्थक्वेक नेचुरल है ना? यस और नो? Yes, ma'am. अर्थक्वेक, Yes, ma'am. हाँ जी, Yes, अर्थक्वेक आ गया. दैट इज अ नेचुरल थिंग. उसके बाद डिजीजेस भी लग सकते हैं जंगल में. जैसे हमारे घर में पेड़ होते हैं तो उन पेड़ों पर क्या लग जाते हैं? कभी कभी कीड़े लग जाते हैं ना. तो दैट इज ऑल्सो Yes, ma'am. हाँ जी, यस मैम. सो डिजीजेस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट फायर. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर का क्या मतलब है कि हम लोग फॉरेस्ट में जैसे फ्रिक्शन की वजह से, ऑलरेडी हमने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ लिया ना, गर्मियों के मौसम में जब पत्तों के आपस में टकरान हो जाती है तो देन वी से दैट कि फ्रिक्शन की वजह से क्या, Please repeat question. फ्रिक्शन की वजह से. क्वेश्चन ये था फॉरेस्ट फायर कैसे होता है. फॉरेस्ट फायर कैसे होता है? द क्वेश्चन वाज दैट. तो फॉरेस्ट फायर होने के लिए क्या है? फ्रिक्शन की ज़रूरत है. गर्मियाँ जब होती हैं तो पेड़ आपस में टकरा जाते हैं. जब वो पेड़ आपस में टकरा जाते हैं तो व्हाट डू दे डू? क्या होता है उनसे कि आपस में उनकी रगड़क हो जाती है और हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. उस हीट एनर्जी से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है एंड दैट कॉजेज द फायर. और एक बार जंगल में आग लगी तो उसको, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? फॉरेस्ट में फ्रिक्शन की वजह से आग लगी. अब उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पूरी वुड है, एवरीथिंग इज़ कंबस्टिबल, तो सारी चीज़ें जल जाएंगी. हाँ बेटा. किस फॉरेस्ट फायर की बेटा? हाँ जी, फॉरेस्ट फायर के दो कॉजेज हो सकते हैं बट बेसिकली वो नेचुरल में हम काउंट करते हैं क्योंकि अगर हमने फॉरेस्ट फायर को मैन ने जलाया है तो वो उसमें आ जाएगा ना. फील्ड्स बनाने के लिए हमने उनको जला दिया, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमने उसे जला दिया, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा.
अब नेचुरल में अगर हम काउंट करते हैं तो हम ये बताते हैं कि क्यों लग जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, बिकॉज सभी वुड है एंड एवरीथिंग विल कैच फायर, तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम बड़े बड़े ब्लोअर्स को यूज़ करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऊपर से डालते हैं एरोप्लेन की मदद से, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप लोगों ने सुना होगा 2-3 महीने पहले कि अमेज़ॉन के जंगलों में आग लग गई थी। हाँ जी बेटा, रिपीट अगेन। Ma'am, by the help of aeroplanes and helicopters. Yes, by the help of helicopters we are going to extinguish the fire. Next thing which we are going to read is conservation consequences of deforestation. Causes तो हमने पढ़ लिया। देखो बेटा, आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाओगे, causes और consequences, क्योंकि दोनों ही सेम दिखते हैं और इनकी स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं बता रही हूँ, कॉज का मतलब होता है कि किस वजह से, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब हुआ, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज कॉज एंड अनदर इज कॉन्सिक्वेंसेस। देयर आर टू वर्ड्स, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉजेस का मतलब कि किस वजह से हुए थे, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट क्या हुआ। हाँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को मैम इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर में। यस, फॉरेस्ट फायर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। आप लोगों को इन दोनों की डिफरेंस पता चल गया, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस का। कॉजेज का मतलब है कि क्यों करते हैं हम, वाई। जब वाई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कॉजेज, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि क्या रिजल्ट होगा। यस, क्या रिजल्ट होगा। वाई वी आर डिफॉरेस्टेशन आर कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने कॉजेज तो पढ़ ही लिए कि फॉरेस्ट फायर हो जाता है, मैन मेड कॉजेज हैं, अर्थक्वेक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल, व्हाट इज द फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। बोलो भाई, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि जो परसों ही पढ़ाया था ना मैंने कि अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर है। मेरी वीडियो ऑन अभी आ रही। हाँ जी बेटा, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर। और जो सन है उसकी रेज जो हैं वो धरती पर आती हैं, और जब वो आती हैं तो ब्रिंग्स हीट विद अलॉन्ग विद इट। लेकिन जब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस में फर्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन, मम्मी जी, हाँ जी। डाइऑक्साइड। सेकेंड इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकेंड क्या है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, कार्बन। ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वाटर वेपर्स। क्या है, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर। नेक्स्ट इज मीथेन।
क्या नाम है? मीथेन। मीथेन, मीथेन, ओके, मीथेन, मीथेन। उसके बाद है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड्स। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड्स। नाइट्रोक्साइड, ग्रीन हाउस पेपर में आ सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स। आगे समझ में? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब इनका काम क्या होता है? इन गैसेस का, इन गैसेस का काम होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लें। किसको ट्रैप कर लें? सनलाइट को ट्रैप कर लें। जब वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं तो क्या करती हैं? वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है रात को, ड्यूरिंग द नाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो रात को है, ड्यूरिंग द नाइट। जब नाइट होती है तो जो सन की हीट है वो वापस जाती है। क्या करती है? सन रेज, सन्स हीट गोज आउट, सन्स हीट गोज आउट, और इसको ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रैप। कौन कर लेता है? ग्रीन हाउस गैसेस। कौन ट्रैप करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। इसीलिए अर्थ जो है वो रात को -400 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता। अदरवाइज रात को अगर हीट पूरी चली जाएगी तो क्या होगा? वो ठंडा होता चला जाएगा, और ठंडा होता चला जाएगा तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस कर लेगा। लेकिन जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो रात को हम ठंडे तो होते हैं। वी नो ना कि नाइट्स आर कंपैरेटिवली कूलर। ये तो हमें पता है ना, रातें ठंडी होती हैं दिन से। यस और नो? यस मैम, यस। यस मैम, क्यों होती है? क्योंकि रात को सन तो है नहीं जिसकी हीट आ रही है, नहीं है, लेकिन जो हीट है वो वापस जा रही है। जब जा रही है तो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती हैं? ट्रैप। ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट थी सन की उसको ट्रैप कर लेती हैं, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। क्या रहता है? मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो और ये गैसेस जो है इसकी परसेंटेज बढ़ जाए, इसकी परसेंटेज बढ़ जाए, ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज बढ़ जाए, तो क्या होगा कि एवरेज टेम्परेचर किसका? अर्थ का। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ will increase। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? एवरेज अर्थ टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? यस और नो? यस मैम, ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ग्रीन हाउस गैसेस का अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन इससे होगा क्या? हमारे पास माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स पे क्या है? ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स में क्या है? बर्फ़ जो है वो पिघल के नदी के थ्रू समुद्र में आ जाएगी, सी में आ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो लैंड है वो भी सी में चला जाएगा, सी का एरिया बढ़ जाएगा, और जो अर्थ है वो पूरी की पूरी पानी में सबमर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। The next is your change in climate.
Next is your change in climate. Who is going to read this change in climate for me? Yes, beta, who is going to read? Okay, nobody is interested, then I am going to read that. Climate change. Deforestation increases temperature, reduces rainfall, and increases wind velocity. This change leads to climate change. Climate का मतलब क्या होता है? We have studied in 7th class that there is a difference between climate and weather. Climate and weather. क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पड़ा था. ये क्या था? डे टू डे. क्या था ये? डे टू डे. और ये क्या था? अराउंड 25 ईयर्स, 25 साल तक हमने ऑब्जर्व किया, तब हमने बताया कि ये यहाँ का क्लाइमेट है. लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज हो सकता है अगर क्या होगा, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे. डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो पेड़ कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे तो रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी. हाँ जी बेटा बोलो. अगर चेंज हो रहा है क्लाइमेट में रेनफॉल की वजह से, इन सब अगर कंटिन्यूसली, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारी जो विंटर ब्रेक्स थे, विंटर ब्रेक थे ना हमारे, वो कब शुरू होते थे? दिसंबर में होते थे. और लास्ट 2 ईयर से कब हो रहे हैं? जैन में. कब हो रहे हैं? जैन में. रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज. रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज. पहले हरियाणा में सर्दियां जो हैं वो दिसंबर में पीक पर होती थी, एंड 14th Jan वॉज सेड टू बी एज द टाइम वेयर द विंटर्स एंड्स. लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, इट हैज़ रिवर्स्ड. और आजकल जो विंटर्स हैं वो जैन में शुरू होती हैं, एंड इट्स कंटिन्यू टिल मार्च. इट इज़ कंटिन्यू टिल मार्च. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज चेंज इन क्लाइमेट. अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है, एंड दिस इज़ अ इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट आई कैन से, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज desertification. Next point is your desertification. What is the next point? Yes beta, what is the next point? Consequences of desertification. हाँ, it's desertification. Desertification. This desert means marusthal. Desert means marusthal, the area where there is no water. Area where there is no water or less water is there, that is called as desert, and the process is called as desertification. अगर पेड़, we know ना, trees are there, और जो trees हैं उनकी roots जो हैं वो soil को bind करके रखती हैं. Roots of the trees bind the soil. Roots of the trees bind the soil. Soil को bind करती हैं. लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिया तो soil की बाइंडिंग भी ख़त्म. फिर एयर आएगी, मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी, वाटर आएगा, मिट्टी को उड़ा कर ले जाएगा, और मिट्टी जो है ऊपर वाली जो फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है वो बह जाएगी, इट विल फ्लो अवे, और जो एरिया है वो डेजर्ट बन जाएगा. डेजर्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं है, बारिश भी नहीं होती. पहले तो पेड़ थे, पेड़ हमने काट दिए. पेड़ों का काम क्या था कि वो रूट्स जो थी वो सॉइल को बाइंड करती थी, एंड इट ब्रिंग्स रेन. ये भी तो है ना, इट ब्रिंग्स रेन. अगर पेड़ होते हैं तभी रेन आती है. इफ़ trees are there then rain will be there. If trees will not be there then rain will not be there. So trees brings rain and absorbs that water and adds to the groundwater. But if trees are not there, I have cut this tree, so no rain, roots will not bind the soil.
जो रूट सॉइल थी वो खुल गई, हवा आएगी और पानी आएगा और फर्टाइल सॉइल को अपने साथ लेकर चले जाएगा. इसको बोलते हैं हम इरोजन. इरोजन. व्हाट इज द वर्ड? इरोजन. इरोजन मीन्स टेकिंग अवे ऑफ द फर्टाइल सॉइल. क्या? टेकिंग अवे ऑफ द फर्टाइल सॉइल. क्लियर बेटा? Yes or no? The next thing is that क्या बेटा क्लियर हुआ या नहीं? यस. ओके, तो ये बात समझ में आ गई. डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन मीन्स डेजर्ट्स का बनना. डेजर्ट्स कैसे बनेंगे? पेड़ काट देंगे, बारिश नहीं होगी. बारिश नहीं होगी, सॉइल की बाइंडिंग भी ख़त्म हो गई, हवा आएगी, पानी आएगा, अपने साथ सॉइल को बहा कर ले जाएगा. सो दैट लैंड विल कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. दैट लैंड विल कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज योर ड्रॉट. नेक्स्ट इज योर DROUGHTS. ड्रॉट्स. ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा पड़ना. ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना. आई कैन एक्सप्लेन अगेन दिस विद द सेम थिंग. पहले पेड़ थे, पेड़ जब थे तो बारिश आ रही थी. अगर हमने पेड़ों को काट दिया तो बारिश नहीं आएगी. अगर 2 साल बारिश नहीं आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर मीन्स सॉइल के जो नीचे पानी है. सॉइल के नीचे बहुत सारे पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स के नीचे सॉइल और सॉइल के नीचे रॉक है. तो ये जो वाटर है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. अगर बारिश नहीं आई और हमने ग्राउंड वाटर को बार बार यूज़ किया तो ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा. Am I clear? More are the trees, more is the rain. More are the trees, more is the rain. Repeat this. More is the tree, more are the rain. Yes, beta. The meeting has over. Now we will continue in the next.